please call upon Dr. Anil Joshi. मैं और मेरा गांव और देश के करीब 60 करोड़ लोग थके हुए और हारे हुए से लोग हैं, क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि अभी कुछ समय पहले कन्याकुमारी से और उत्तराखंड की एक साइकिल यात्रा हमने किसानों के लिए की थी। एक बात उभर के आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मुकेश भाई। आज देश दो भागों में साफ बट रहा है, गांव और शहर। ऐसे प्रयोग की शुरुआत अगर आप कर सकें जहां हमारे गांव के संसाधन हो, आपका बाजार, आपकी निपुणता और आपका स्किल, अगर ये दोनों मिलके 50% की भागीदारी में कुछ सोचें तो शायद हम एक देश को एक नया आयाम देंगे। और आपने हमें जो ये सम्मान दिया है, आपको देश के 60 करोड़ लोग सम्मान देंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। Thanks very much. पहले तो मैं जो कुछ भी बात आपसे कहूँगा, आप ये मान के चलें वो अनिल जोशी नहीं कह रहा है। करीब 1 लाख लोगों से लगभग पिछले 9 महीने में मिलने के बाद मैं उनकी बात आपसे कह रहा हूँ। 9 महीने पहले हरियाणा के एक किसान ने कहा, कौन कहता है हम स्वतंत्र हैं, हम तो आज भी गुलाम हैं। इस देश का किसान अगर ये कहता है, हम सबको डूब के मर जाना चाहिए। और उस गुलामी का नाम उसने दिया था, मुझे हरियाणा के उस किसान ने कहा था, इकोनॉमिक स्लेव, आर्थिक गुलामी है हमारी। ये बात मन को बहुत कष्ट उठा इस बात को सुन के, क्योंकि जब मैं छोटा था और आपने भी पढ़ा होगा कि इस देश को कहा जाता है ये कृषि प्रधान देश है, पर वो किसान कहाँ है? खो गया है, हमने उसको भुला दिया है। रास्ता है लंबा भाई मंजूर, रास्ता है लंबा भाई मंजिल है दूर, हम हैं नए इंसान, हम चलेंगे सीना तान, जब हम मिलकर चलते हैं, जब हम मिलकर चलते हैं, रास्ता है लंबा भाई मंजिल है दूर। ये हवाएं मेरे विरोध क्यों चलती है? क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार को मेरी बात नहीं पचेगी। கிணறுகள்லேயும் தண்ணி இல்லை. ஒரு 100 ஹெக்டருக்கு மேலே காற்றாடி போடுறதுக்காக மின்சாரம் தயாரிக்க தானே எடுத்துருக்காங்க. இங்கே உள்ள விவசாய நிலைமை வந்து ஏற்கனவே கழுத்து வரை கடன் முட்டி போச்சு, தற்கொலை போயிட்டு சாகர் லெவலில் இருக்கான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்த வந்து எனக்கு பங்கு கொடுன்னு சொல்லி காலத்தாளத்திற்கு என்னால் முடியல. சரி, இப்போ சும்மா கிடக்கிறதையாவது போட்டுருவோம், விற்றுருவோன்னே விற்றோம். எனக்கு மற்ற பயிர்கள் போட்டாலும் பூரா புல் முளைச்சி பயிருக்கு மேலே புல் வருது, இது மாதிரி என்ன பலன் கிடைக்கும்? அதனால சரி காற்றாடிக்காத போட்டுருவோம், போட்டுட்டு ஏதாவது பேங்கில் போட்டுட்டு எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தா பேக்கில் போட்டு போயிட்டு அப்படிதான் நிறைய நிலங்கள் காத்தடிக்கு. இப்போ நிறைய பேர் கூலி வேலைக்கு போகிறாங்க. இப்போ பசங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? பசங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க படிச்சு இது மாதிரி எங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லையா? அதெல்லாம் எங்கேயாவது வாம்பை பண்ணுறது அப்படியே அனுப்பி விட்டுறது தான். விவசாயம் பண்ண முடியாது, என்ன வெளில போகிறோம். They should review the whole project which is coming up around the farmland and speak to the industrialists or the government that we will only give you the land once you will give us a share in the coming project. बड़ा कष्ट हुआ ये जान के कि ऐसा तमिलनाडु में था
ऐसा क्यों हुआ? क्यों आए हम? दिमाग खराब था हमारा पुलिस से? क्यों चल रहे हैं हम इतनी यात्रा में? एक 18 साल की लड़की है, एक 68 साल का बूढ़ा है। सब सोचिएगा आप लोग, पागल नहीं हैं हम। और अगर हम चल रहे हैं तो तुम्हारे लिए भी चल रहे हैं, ये अपने लिए नहीं चल रहे, हम सब के लिए चल रहे हैं। இங்கே அவ்வளோ இடம் இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. 3000 ஏக்கர். இங்கே அந்த பத்தைக்கு அங்கே கட்டடம் மாதிரி இருக்குல்ல, பின்பக்கம் அந்த அங்கே ஒரு ரோடு வேறு இருக்குது, அந்த ரோடு வரைக்கும் இருக்குது. எவ்வளோ தூரம்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்குது. நல்லது தான், ஊருக்கு நல்லது தான், மக்களுக்கு எல்லாம் நல்லது. வேலை வந்துட்டுனா எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும். உங்கள் ஊருக்கு வேலை தேவைப்படும்? எங்கள் ஊருக்கு 200 பேர்கிட்ட தேவைப்படும். அப்படி பக்கத்தில் சுற்றி கிராமங்கள் நிறைய இருக்குது. அப்படிங்கல 1 லட்சம் 2 லட்சம் பேர்கிட்ட தேவைப்படும் வேலைக்கு. யாருக்குமே வேலை தராமல் எல்லாம் மெட்ராஸில் இருந்தோ இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருந்தோ வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படி எடுக்க மாட்டாங்க, நம்பிக்கை உண்டு. எப்படியும் எங்கள் ஊரில் சுற்றி எடுக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க. எப்படி எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நம்பிக்கையில் வேலை பார்க்குறோம். இங்கே என்ன இந்த பிளாட்லாம் விற்கிறாங்களா? பிளாட்டு பக்கத்துலடியெல்லாம் விற்கிறாங்க. எவ்வளோ இடம் விற்கிறாங்க? இந்த மாதிரி நிறைய விற்கிறாங்க. கம்பெனி தொடங்கினா வீடு நிறைய வரும். இங்கே ஊர் நல்ல டெவலப்மெண்ட் ஆயிரும். My background basically is I'm a BE computer science engineer. Then I moved to US, worked there for 8 years. I thought it's enough and I want to come back to India. The real estate, it's really booming and India is growing. And based on all the newspaper clippings, it seems like 8 to 9% or 8 to 12%. And there are very few people who does in a very professional way. So I thought, okay, this is a good business and I want to do it. How did you manage to zero on this piece of land? We wanted to get a land near SEC. Like we were initially going around 1 kilometer around the SEC. Second round was 2 kilometers, 3 kilometers and 4 kilometers. This land is exactly 4 kilometers from Nanguneri. In 10 to 15 years, you will see buildings and houses which you would not even imagined. The reason is very simple. It's very near to SEC. And when SEC grows, ultimately this is going to grow. And so many people are going to come and stay here. Are there a lot of NRI people coming in? Yeah, yep. What percentage would you put? I would say like 30 to 50%. The 4 acres there and another 7 acres here. 100 plots there and 300 plots here. What's been the success? I think it's doubled based on the newspaper reports. And doubled in what, 6 months, 1 year? I would say 3 to 5 months. Because it's very close to SEC. When you heard of this entire SEZ thing coming up in India, is this a viable economic model for India? Yeah. The people here, they didn't see much development in their life. So once this SEC comes, definitely they will get some kind of job which will definitely improve their livelihood. மற்றதை பொறுத்தவரையில் இந்த 7 வகையாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். ஃபார்மா பார்க்கு மட்டும் இல்லை, கம்யூனிகேஷன் செய்யலாம், எலக்ட்ரானிக்கு செய்யலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் ஐட்டம் செய்யலாம், எது வேணாலும் அக்ரிகல்ச்சர் ஐட்டம் செய்யலாம். 7 விதமான ஃபேக்ட்ரி அங்கே வரலாம், 7 விதமான இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் அங்கே வரப்போகுது. அதனால் எல்லா விதமான வேலை கிடைக்கும். அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அதை நம்பி கடை வச்சுருக்கவங்க, அதுலேருந்து டூரிஸ்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க,
அங்கேருந்து பலவிதமான ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ரெடி ஆயிரும். அதாவது உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே ஸ்கூலு, அதுக்குள்ளே அந்த சமுதாய நலக்கூடம், அதுக்குள்ளே ஸ்போர்ட்ஸு எல்லாமே வந்துடும். அப்படி வரச்சுமே ஒரு நாங்குநேரி தொகுதி தமிழ்நாட்டில் ஒரு முதன்மையான தொகுதியாக வர்ற வாய்ப்பு இருக்குது. इधर एक शहर बनने जा रहा है, उसका नाम है टोक्यो नगर। टोक्यो नगर रखा हुआ है, मतलब अंग्रेजीकरण का रखा है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है। चलो चलिए விவசாயம் அழிஞ்சு போகும். ஜப்பான் மாதிரி இங்கே வரணும்னா விவசாயம் எங்கே இருக்கும்? நீங்கள் ஓவர தொழில் கொண்டுடலாம். விவசாயம் சாப்பாட்டுக்கு நெல் கிடைக்கணும்ல. நம்ம வேலை பார்க்கலாம் அப்படி நினச்சி வேணா தான் எங்கேயோ வேலை பார்க்கலாமே. அது ஏன் நாங்குநேரிக்கு தான் தொழில்நுட்பம் வரணுங்கிற இது இல்லையே. இல்லைங்க, வேலை கிடைக்குங்கிறது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கான்னு கேட்காங்க. நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை. கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை. எப்படி கிடைக்கும்னு சொல்லி படிப்பறிவு இல்லை. படிப்பு எங்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த தொழில்நுட்ப பூங்காவில் வந்து பாலிடெக்னிக்கு இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி தானே முக்கியத்துவம் கொடுக்காங்க. 10ஆம் கிளாஸ் படித்தா போதும் வா, +2 படித்தா போதும் வா ஆன்னு சொல்கிறாங்களா? அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் படிச்சிருக்கியா? கம்ப்யூட்டர் படிச்சா அப்போ வந்து நாங்கள் கிராமத்தில் இருந்துக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறது எங்கே போக? இப்போ நம்மளால் முடிஞ்சது ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் தான் சேர்க்க முடிஞ்சது. வேலைக்கு வெளியில் போகிறது வந்து நம்ம நிறுத்தினோம்னா மெயின் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி. இந்த தண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா வெளி மாநிலத்துக்கோ வெளி மாவட்டத்துக்கோ வேலைக்கு அவசியம் இல்லை. கவர்மெண்ட் வேலை தேடி கூட நம்ம போக வேண்டியதில்லை. நம்மக்கிட்டே நம்மளே தனியாக நின்று நம்ம சாதிக்கலாம். விவசாயத்தை மிஞ்சினது எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில். ये देखिए, ये इतना बड़ा ये ब्रिज आ रहा है। हाँ, ऐसी जेट के लिए एक गांव में सड़क जाना कितना मुश्किल है हमारे देश में, लेकिन ऐसी जेट आ गया तो सब कुछ आ गया। जहाँ जहाँ हम फार्मर्स को मिलने गए वहाँ हमें बड़ा कष्ट उठा कि इस देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं। कहीं पे यह आ रहा था कि सह जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसानों ने कहा ये स्पेशल एग्जीक्यूशन जोन है हमारे लिए। उनकी लैंड को एक्वायर किया जा रहा था, उन्हें बड़ा कष्ट था। एक किसान ने मुझसे कहा सरकार आई, दे हैव एक्वायर्ड। मैं क्या कर सकता था? मुझे बोलना नहीं आता था, कौन लड़ता मेरे लिए? तुमको लड़ना चाहिए था, जो काम नहीं करते, जो खेती नहीं करते, जो खाना नहीं पकाते, जो खेतों में काम नहीं करते, कम से कम उनको मेरे लिए लड़ने के लिए आना चाहिए। कौन आया? मेरी जमीन चली गई।
मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा कैपिटल जनरेटेड रिसोर्सेज में फार्मर है। और मेरा मानना ये है दे आर द ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री, और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि भगवान के बाद अगर दूसरा स्थान मिलना चाहिए तो किसान को मिलना चाहिए। और जय जवान और जय किसान का नारा बड़ा खोखला और अधूरा सा लगता है कि किसने 60 सालों में कुछ नहीं किया। अब शायद कोई फिल्मी चमत्कार ही हो जो कि किसान को राजकुमार बना दे, या वो जो बड़े बड़ी एक एक्टर हैं अमिताभ बच्चन बना दे, तो शायद किसी के अनुयायी खड़े हो जाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल लगता है। ये ट्रैक्टर खड़ी तहसील में, देख रहे हैं आप? अच्छा, और मना कर रहे थे फोटो खींचने के लिए, पता है तेरे को? तो ये क्या स्टोरी है इनकी? मैं अभी दिखाता हूँ ना तेरे को। वो कौन सा गांव था? खंबार। खंबार में कैलाश की एक स्टोरी है। एक किसान के पास एक एजेंट जाता है, पटेल साहब आप और बिना ट्रैक्टर के, ये क्या बात है? बैलों से आपको मुक्ति मिलेगी और उसके बाद आपका ट्रैक्टर जो है बजरी ढोएगा, तमाम तरह का आजकल इतना काम है। सज्जन चपेट में आ जाते हैं, वो उनको पटा के कंपनी में ले जाता है। बैंक वाले फिर पिक्चर में आते हैं और बैंक वाले उस किसान को लोन दे देते हैं। सरकार का एक टारगेट फिक्स होता है, 18% क्रेडिट जो लोन है वो किसानों को जाना चाहिए। किसानों के उस लोन की परिभाषा में ट्रैक्टर ही क्यों सबसे ज़्यादा आगे आता है? वो बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि तुम ट्रैक्टर के लोन कैसे किस तरह से वापस करोगे। ये किसानों के साथ होने वाला देश का सबसे बड़ा धोखा है मेरी नज़रों में। छोटे लाल, उसने दूसरे आदमी का नाम बताया कि छोटे लाल मेरे गांव का व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। मैंने उससे कहा कि देख, मैं खुद शिकार हो चुका हूं, तो क्यों परेशान हो रहा है? छोटे लाल साहब को एजेंट साहब कहते हैं देखो वो पैसे कमा रहा है, तुमको नहीं खरीदने देना चाहता है। छोटे लाल साहब शाम को दारू पी के आते हैं और उसके घर में जाके घपला करते हैं कि तूने पैसे कमा दिए और तू मुझे नहीं खरीदा। आज 5 साल बाद छोटे लाल की भी वही हालत है कि वो भी कगार में खड़ा हो चुका है। और आप बैतूल तहसील का अगर एक नज़ारा देख के आए तो वहाँ लाइन में ट्रैक्टर खड़े हो रखे। 3 लोगों की मिली भगत है इसमें, एक एजेंट की, ट्रैक्टर कंपनी वाले की और बैंक की। कुछ केसेस में तो यह है कि पहली किस्त भी नहीं दे पाए और उसके बाद लिटरली उनका ट्रैक्टर तो गया। जब ट्रैक्टर बिकने के बाद पैसा वसूल नहीं हुआ तो वो जाके सीधे जमीन बिक जाती है। और ये जमीन खरीदता कौन है? जमीन खरीदार तो बहुत है, नीलामी होती है, ऑक्शन होता है जमीन का। बैंक तो ऑक्शन करेगा, वो भी उसका एक हिस्सा होगा, क्योंकि ये तो नेक्सस है। बैंक अगर ऑक्शन जब करता होगा तो बताता होगा अपने लोगों को कि देखिए साहब ये ऑक्शन हो रही है, 5 आदमी पहुंच जाएंगे जिनका एक हिस्सा होगा। कष्ट में पैदा हो और कष्ट में ही मर जाओ, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। इससे तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो और बड़े कष्ट में रहोगे।
ఈసారి బాగా పంట వచ్చిందా? ఏం పంట వచ్చిందిలేమో చెప్తారు, అటు వెనక చూసి చెప్తారు. అది దీనికి 50,000 పెట్టుబడి పెట్టిండేది, 50,000. దీనికి 50,000. ఇది సగమే అయిండేది. సో నష్టం పోయింది కదా? నష్టమే కదా. సరైన సమయంలోనూ మనకి పంటకి ఇప్పుడు శనక్కాయ తొగుతాండాము, ఈ మిరపకాయ చెట్లు పీకుతాండాము, గడ్డి కలుపు తీస్తాండాము. కలుపు తీసేటప్పుడు డబ్బులు లేవు. ఎవరినన్నా పోయి అడిగితే ఒక సేటు దగ్గరికి వాళ్ళు కదా, సేటు 3 రూపాయలు వడ్డీ సగము పట్టుకొని ఇస్తాడు. బ్యాంక్ ఎవరు డబ్బులు ఇరా? బ్యాంకుల్లో ఏడిస్తారు. నాకు ఇట్లా డ్రిప్పులు వేపమ్మా చెట్లకి అని అంటాను. అంటే సర్లే రాములే సొమ్మరా, నీకు పలానా సాటికి ఈ బాబు దగ్గరికి రా అంటావు. వాటికి వచ్చేదానికే మేడం లేదు, సార్ ఉన్నాడు, వేరే సాటి చెప్తా కాల్చింటేను తీసపోదు, వానికి ఒక 500 అంటాడు. వానికి 500, ఇంకొకనికి 500, ఇంకొకనికి 500 కొనుక్కుంటే యాదారులే ఒకనాడు వేసిపోతారు. ఏమో నిజమా కదా? గవర్నమెంటు అట్లా మొబ్బుగా ఉండదు. తేలిగ్గా ఉంటే కదా గడ్డకు పడేది ఎవరైనా. అట్లుండారు వాళ్ళు. పోయిన సంవత్సరం పంట ఇట్లానే ఉండిందా? లేదు, నీటి సంవత్సరం పంటే లేదు కదా. బాయిల్లో నీళ్లు లేవు. ఒక బోరు ఆడేసింటిమి, ఆడొక బోరు ఉంది, ఆడొక బోరు ఉంది, ఆడొక బోరు ఉంది, ఆడొక బోరు ఉంది. అవన్నీ నిరుడు 2 పేలూరు అయినాయి, 2 బోర్లు. ఒక్కొక్క బోరుకి 20,000, 20,000, 40,000 అప్పుకు వడ్డీ కట్టేదా, తినేదా, పిల్లల కిందని చూసుకునేదా? చెప్పారమ్మయ్యా మీరేను? రైతులు ఏడుండారు? రైతులు దేంది లేదు. డిసెంబర్ 21 పురుగుల మందు తాగి చనిపోయినాడు. 2 ఎకరాల భూమి ఉంటే అప్పు ఎక్కువ అయిందని 1 ఎకరా అమ్మినాడు. 4 సంవత్సరాలు అయింది అది అమ్మిన తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అప్పు తెగలేం. చేను ఎకరా భూమి అమ్మినా కూడా తెగకుంటే ఇంకా మళ్ళీ అప్పులు తెచ్చి చేనులలో పెట్టి, ఈ వరదలు వచ్చి వర్షాలు ఎక్కువ పంటలు పండక ఈ సంవత్సరం తెచ్చుకొని వడ్డీ కూడా లేని పరిస్థితులు వచ్చింది. ఇంకా అట్ట ఉన్నందుకు ఇంకా ఇప్పుడు బిడ్డది ఎంగేజ్మెంట్ చేసినాడు, 5 నెలలు అయ్యింది చేసి. పెళ్ళి చేయాలన్నా ఈ అప్పులు దిద్దాలన్నా మళ్ళీ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ పక్క పోతీస్తారా ఇవ్వరా, ఏం ఆలోచించుకున్నాడో ఏమో. ఇంకా అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు అడగట్లేదా డబ్బులు? అడుగుతున్నారు, అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతున్నారు. ఇంకా మేము ఇస్తాంలే నాయన, ఈ పంటకు కాకపోతే వేరే పంటకి ఇస్తాము, మేము పొలం ఏమీ వేయలే కదా, మా ఆయనే చచ్చిపోయినాడు, తిద్దుతాంలే నిదానంగా అని చెప్తున్నాము. పొలం అమ్మి కట్టాలంటారో ఇల్లు అమ్మి కట్టాలంటారో ఇంకా అర్థం అవుతలేదు. ఇంకా పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఎట్లా గడుస్తున్నది ఇప్పుడు? కూలి వాడ తెచ్చుకొని తినారా? అప్పుడు ఇంకా లేదా 2 నెలలు అయింది చనిపోయి. ఇంకా ఏం చేస్తారో ఈ నెల 3 నెలలు 5 నెలలు అన్నాక ఏం చేస్తారో దేవునికి ఎరక వాళ్ళు అప్పులలో అందరూ. ఇప్పుడు అంతా కలిసి అప్పు ఎంత ఉందమ్మా? రచ్చన్నాడు.
देखिए, भूखा आदमी दूसरे पे आक्रमण करता है, तो निश्चित रूप से एक राज्य दूसरे राज्य से क्यों नहीं लड़ेगा। और ये जो पानी की लड़ाई है कर्नाटक की और तमिलनाडु की, ये कृषि पैदाइश के लिए ही है। जिसके यहाँ पैदा होगा, जिसके यहाँ नहीं पैदा होगा, आपस में मतभेद बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर तमिलनाडु की प्रोडक्टिविटी की चिंता है तो हमें पहाड़ों की भी करनी होगी, मध्य प्रदेश भी करनी होगी, हरियाणा पंजाब में जो अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है। क्योंकि अगर समानता असमानता होगी तो अवश्य युद्ध हुआ, लड़ाई होगी। और इस यात्रा का शायद एक बड़ा अनुभव है कि समान तरीके से हमें कृषि को हर राज्य में बड़ा महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कई तरह के इम्बैलेंसेस शुरू होंगे, जो कृषि से चलकर इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस और तमाम तरह के इम्बैलेंसेस होंगे। ये सोचना होगा। What happened to the Coca-Cola? Why? 9 லட்சம் 9 lakh liters. What they get out of it? இல்ல அவங்களுக்கு 9 லட்சம் லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கறது அக்ரிமெண்ட். 1 லிட்டர் தண்ணி விலை வந்து 1 லிட்டருக்கு வந்து 20 பைசா கவர்மெண்ட் காஸ்ட் கொடுக்குது. அவன் வெளியே வந்து 1 லிட்டர் தண்ணியை விற்றா 13 ரூபாய்க்கு விற்கிறான், 10 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். 1 லிட்டர் தண்ணியை 7-அப்பா விற்றான்னு சொன்னால் அதை வந்து 20 இல்லை 40 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். 1 லிட்டர் 7-அப்பா 40 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். 1 லிட்டர் ஆமாம் 1/4 லிட்டர் தான் 10 ரூபாய். My question is, what villagers are getting out of this? விவசாயிகளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர் வந்து 1 hour அல்லது 2 hours டெய்லி. அது இந்த துறையூரை பொறுத்த அளவுக்கு துறையூருக்கு போகுதான் மிச்சம், இந்த இங்கே உள்ள கிராமத்துக்கு போகுதான் இந்த தண்ணி மிச்சம் அவங்க கொக்கோலாவுக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் இப்போ வந்து கொக்கோகோலாவுக்கு போகுதான் மிச்சம் மக்களுக்கு கொடுக்காங்க. இங்கே இதே ஐடி டிப்ளமோ படித்தவங்க இந்த ஊரில் இருக்காங்க, அதே கிரேட் படித்தவங்க மெட்ராஸ்லேருந்து ஆலக்கோட்டை வந்து திருவள்ளூர் அந்த நகர் அங்கேருந்து மெட்ராஸ் அங்கேருந்து வந்து இதே கோக் கம்பெனி எல்லா கம்பெனியும் வேலை பார்க்குங்க. கழிவு பூரா பூமியில் இறங்கும். பூமியில் இறங்கி ஆடு மாடு எல்லாமே ஒன்றும் வளர்க்க முடியாது, விவசாயமும் செய்ய முடியாது, விவசாயத்தையும் பாதிக்கும் அந்த கழிவு நீர் இறங்கின உடனே. இது இப்போ இறங்கலை, இப்போ இறங்கிரும், இன்னும் 2 வருஷத்துக்குள்ளே இறங்கிரும். நாங்கள் இப்போ எவ்வளோ போராட்டம்லாம் பண்ணி பார்த்தோம், ஆனால் அந்த நேரத்தில் போலீஸை வச்சு அவங்க எல்லாம் இது பண்ணி போராட்டம் பண்ணோம். ஆனால் அப்பவும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டு கட்டி அவங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. हवा, पानी और भोजन, ये 3 अभिन्न अंग थे, एक एक करके सब बर्बाद कर दिए। किसने? सो कॉल्ड डेवलपमेंट ने, विकास ने। कुछ हद तक तो बर्दाश्त किया गया, जंगलों को छेड़ा, और एक अब ऐसी चीज छेड़ रहे हैं जो सीधे हमारी पेट में लात मारने वाला, खेती। एक किसान ने मुझसे कहा कि ओ लाल साफे वाले दाढ़ी वाले, सुन, तैयारी कर ले, मिट्टी की रोटी खानी है, सीमेंट की रोटी खा लेगा खाना तो तुझे अब यही मिलेगा, क्योंकि खेती खत्म हो रही है। तो भूल रहा है कि सबसे बड़ी चीज मैं देता हूं इस दुनिया में तुम्हें, ये आईटी बीटी सीटी कुछ नहीं देता। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तो तुम्हें जरूर देगा, तुम्हारे उड़ने के लिए देगा, तुम्हारी सुविधाओं के लिए जुटाई जाने वाली चीजें देंगी ये इंडस्ट्रीज, लेकिन मैं तुम्हारे पेट के लिए देता हूं, और ये पेट की लड़ाई है। मैं तो जो पैदा करूंगा मैं खा ही लूंगा, बना ही लूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए पैदा करने वाला नहीं हूं। बहुत कुछ दिया मैंने तुमको, मैं अब तुम्हारे लिए करने वाला नहीं हूं। और वो किसान की आत्मा थी, उसने बोला कि क्यों नहीं तुम ऐसा सोचते हो कि हर राज्य में एवरी स्टेट शुड हैव ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ लैंड
अंडर एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों नहीं सोचा जा सकता? क्योंकि 2050 में जो पॉपुलेशन होगी उसके लिए अगर आपने आज सोचना शुरू नहीं किया तो आप मरने वाले तय हो। और अभी तक तुमने सुना होगा वाटर वॉर, वाटर कन्फ्लिक्ट, पेट्रोलियम वॉर, अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया, फूड वॉर होगा। और मित्रों, ये सत्य है। गेहूं का क्या भाव होगा? आज 1200 रुपये कुंटल का भाव है। अब यहाँ से 20 दिन के बाद ये गेहूं पक्के तैयार हो जाएगा, फिर किसान ले जाएगा मंडी, तो इसका भाव रह जाएगा 550-600 रुपये कुंटल। 600 से आगे नहीं बिकेगा। फिर वो उसको खरीद के भर देंगे और गोदाम से वो निकलेगा 1100-1200, 1100-1200 के भाव। एक क्विंटल में 450 का नेट पैदा है। मिल वालों को एक क्विंटल में कम से कम नहीं तो 10 किलो रवा निकालेगा, और रवा 20 रुपये किलो बेच जाएगा। और फिर उसके बाद मैदा निकालेगा, उसमें मैदा 10 किलो मैदा का भाव होगा 15 का। फिर उसमें से चापर निकलेगी 10 किलो। चौकर का भाव तो 10 है, 15 भी मिल जाए। और फिर उसमें से आटा निकलेगा। 70 किलो आटे का भाव क्या? 60 रुपये बचेगी। 12 रुपये किलो सूजी, आटा, मैदा, चोकर 1250 हो गए। जब उसने खरीद क्या भाव की? 550-600 रुपये। ये किसान की कमर तोड़। और अगर ये काम भी किसान के पास होता तो फिर क्या तो मजे थे। अरे मजे क्या, कोई किसी के पास जाता ही नहीं। यही साफ लड़ाई न पैसे के लिए जाता, न धन के लिए जाता, न किसी के लिए। आपने कभी ऐसा किया है, समझ लीजिए 100 किलो गेहूं हुई कि भाई 50 किलो बेच दे, 50 रख ले? हाँ, ऐसा भी हो जाता। तो या मेरे पास जैसे अब खर्चे के लिए पैसा है तो मैं उधर जाकर बरसात में बेच दूंगा, तो मुझे अच्छा भाव मिलेगा। बड़ा ही कर सकता है। छोटा किसान में तो हुआ सीधा मंडी। और करीब कितने दिन तक आते हैं? आते ही रहते हैं। 1 महीना। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? मेरे को यहाँ 3-4 दिन इसी ट्रैक्टर के ऊपर सो रहे हैं। सरकारी है नहीं इधर, सरकारी कोई सब प्राइवेट है, सब जगह यही कहानी जी कहानी है। और लगभग नंबर कब तक आने की संभावना है? कहाँ पता है कब कहते हैं तो ये कह देते हैं कि यहाँ से ले जाओ, हमारी मर्जी, हम जिसका माल ले सकते हैं और जिसका नहीं ले सकते। और इसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो किसानों को कुछ नहीं मिलेगा मुआवजा। अगर इसमें खट्टे सड़के कुछ भी हो गया तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ है कई 4 साल हुआ है, 4 साल हुआ सड़के सब गैस नहीं छोड़ी इन्हें, सब यहीं फटके सब गिर गए। मशीन में कोई मैकेनिक, कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं किसी को। किस बात का? कोल्ड स्टोरेज है, 50 रुपए तो पर कट्टा तुमने वैसे भी दिया होगा। वो यूं कह के डाल देते हैं कि आपने आलू की छटाई ढंग से नहीं की होगी। ये कट्टे लग रहे हैं 3-4 दिन से लेने में। और इसके ऊपर पर्ची पे लिख देगा कि आपका माल दुख पाया हुआ है। और उसकी सड़ गया या कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, किसान की, मालिक की। जो 2 लाख कट्टे यहाँ जमा हुए होंगे, इसमें इनकी भी खरीद होगी अपनी? आधी खरीद। ये मतलब बाद में बेचेंगे अपना आराम से पैसे बनाएंगे। इसमें तो जो किसान अपना बड़ा किसान है उसका माल जल्दी ले लिया जाता है, जो छोटा है उसका बाद में लेते हैं। आज तुम 10 बजे तक देखो, किसान के तो माल को देखो, ये किसान के तो ये जाते हैं वापस और ये लेता है 10 दिन। किसान अगर वापस गए तो ये माल खराब है, वो पूरा किसान को गैया खांगी सड़कने में, गैया खांगी। मंडी में तो ये 150 रुपया कट्टा। 300 रुपया कुंटल। आपका इधर कितना बोरी है? कम से कम 2000 बोरी। 2000 बोरी। आपकी? हमारी से 2000 हमारी होगी। आपकी भी 1000 बोरी। आपकी 1500 है।
अगर माचिस भी बनाता है उसको अगर 50 पैसे की लागत में माचिस तैयार हुई तो वो सोचता है हमारी 75 पैसे में बिके। लेकिन किसान की जो फसल है अगर वो 1000 रुपये में तय हुई, 1000 रुपये में उसकी फसल पैदा हुई तो वो भी चाहता है कि हमारी 1200 में बिके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार हमारी सब्सिडी कम करती जा रही है और बात की जा रही है कि किसान की तमाम सब्सिडी खत्म की जाए, जबकि यूएसए के फिगर देखिए 4.7 बिलियन डॉलर केवल कपास के लिए किसानों को सब्सिडी के तौर पर रखा गया है। हमारे यहाँ पे जो 24% सब्सिडी थी किसानों के लिए 5% योजना के रूप में, वो घटकर 12%। अगर उसकी फसल किसी तरह आपदा से नष्ट होती है उसका उसको पूरा मुआवजा मिले। फोर्ड की एजेंसी जब आई थी तो 30,700 रुपये थी, हमारा नरमा 500 रुपये था। आज वो फोर्ड की कीमत 4-5 लाख की चली, हमारा नरमा 1500-2500 रुपये है, 2000 है। वो तो इतने गुणे मतलब मशीनरी है, इतना गुना माल बढ़ गया, हमारा 3 गुना बढ़ा इतने साल में, हम क्या करेंगे। पिछले साल जो गेहूं हमारा बिका था ना वो 850 रुपए से बिका था। अब वही सरकार जब गेहूं विदेशों से मंगाती है तो 16 रुपये में मंगाती है। 16 रुपये में गेहूं क्यों मंगाया जाता है? अगर हमको 14 रुपये के दाम दिए जाएं। किसान को कर्जा देते जाओ, किसान को कीमत मत दो, वो कर्जा लौटा नहीं पाएगा तो मजबूर कर दो जमीन बेचने के लिए। जब तक तुझे किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक तुझे किसान रहेगा तूफान रहेगा। बैंकों से कर्जा लेकर तो छुड़वाते हैं और वो कर्जा बाद में रहेगा। देश में 750 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने, सरकार को चिंता है कि उनके लिए सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। आपकी जमीन को छीना जा, उसके बाद वही बचेगा। ये 7.5 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं, इसमें आपको सस्ते मजदूर के तौर पे एक मजदूर की हैसियत से आपसे काम करवाया जाएगा। ये षड्यंत्र किसान के साथ चल रहा है। मैं 80% और ये 20% वाला मेरे ऊपर अधिकार किए बैठे। हमको धर्म, जाति और भाषा का भेद भुलाना पड़ेगा। हमको एक झंडे और एक संगठन के नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भविष्य बचने वाला नहीं। 5 घंटे करता हो और 18 घंटे मजदूरी करता हो, मेहनत करता हो, मेहनत करता हो, वो परेशान क्यों? हर चीज में हर आधे जगह कहीं न कहीं आज हिंदुस्तान के अंदर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। Having carefully weighed the pros and cons of debt waiver, I place before this House a scheme of debt waiver and debt relief for farmers. For marginal farmers, is this the concern that the House is showing to the farmers? For marginal farmers, Then keep quiet, please. that is holding up to 1 hectare, and small farmers 1 to 2 hectare, there will be a complete waiver of all loans of over 200,000. What are you doing? Is this a responsible behavior? No, sorry. Nothing will be recorded. Don't record What is the anything. point? What is the point? Please Sit take down. your seat. Let me Please. read it. Sit down. No point, Mr. counsel. Khairat, this is very, very... Sir, You are a professor. down. Just A sit down, professor, sit down. okay, Nothing सब can काम do. Sit करते down. ठीक है, बैठ जाइए. Government estimates that about 3 crore small and marginal farmers and about 1 crore other farmers will benefit from the scheme, the total liability being 60,000 crore rupees. You should be all right. You should be happy. If it is IVAS, you should be happy. Sir, if I may add, in discharging the debt of the farmers, we are not merely helping them discharge the debt, we are discharging a deep debt of gratitude that the people of India owe to our farmers. ये ऋण माफी जरूरी है, मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। पिछले 50 सालों में दोस्तों, गेहूं कौन पैदा करता है और आटा बना के अन्नपूर्णा वाला बेचता है, शक्ति भोग वाला बेचता है। गांव के किसान को 7 रुपया मिलता है उसके अनाज का और 18 रुपए किलो का आटा कोई और बेचता है।
क्या किसानों को अपने उत्पाद का पिछले 50 सालों में सही मिला? और मैं आंकड़े के आधार पे आपको कह रहा हूं कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है किसान के प्रोड्यूस में वो 80 से 85% है। तो आखिर बड़ा हिस्सा लाभ का वो लेते हैं जिन्होंने पौधा नहीं पाला, जिन्होंने पसीना नहीं बहा, और यही प्रॉफिट चेन की कमियां हैं कि किसान किसानी को फायदेमंद नहीं समझता। तो सरकार ने समझो कि मुआवजा दिया है, एक कंपनसेशन दिया है उसके उत्पाद का, उसने किसानों पर एहसान नहीं किया मेरी दृष्टि में। बिल्कुल। एक नंबर 2, ये दोबारा घटना ना हो इसलिए किसान बैंक जैसी जरूरत है, वो बैंक अपने आप में अद्भुत होना इसलिए चाहिए कि वो किसानों के पूरे उत्पादन में और उत्पादन के बाजार में और लोन लेने में, जानकारी हासिल करने में, बीज लाने में किसानों के साथ भागीदारी करें, क्योंकि किसान आज अकेला पड़ गया है खेत में। नॉर्मली हर एक किसान 50 सालों में 5 या 10 बार फेल होता है, 40 बार तो सफल होता ही है, और उस 40 बार वो बैंक इंटरेस्ट ले कमाई लेगा। अब एक बार बैंक के पास जब सामान जाता है, कच्चा माल जाता है, अमूल ने क्या किया बताइए? अमूल स्टार्टेड विद व्हाट? कलेक्शन ऑफ मिल्क। किसान बैंक कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अमूल स्टार्टेड द वैल्यू एडिशन, फ्लड कर दिया। किसान बैंक, अमूल आज कमा रहा है। और जिस तरह से बड़े घराने खेती में उतर रहे हैं, तो एक इशारा तो तय मान लीजिए कि निश्चित रूप से कृषि लाभप्रद है। अगर लाभप्रद नहीं होते तो भैया अंबानी परिवार सोचता है इस बारे में? टाटा या आईटीसी का जो चौपाल है ये सोचते? साफ सी बात है लाभप्रद है, लेकिन वो परिस्थितियां किसान के लिए क्यों नहीं पैदा की जा सकती जो इस बड़े घरानों के पास है? ये शायद सबसे बड़ी कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान बैंक जैसी चीज़ों में एक लंबी बहस की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो सब कोऑपरेटिव के जो डिमेरिट्स हैं, बैंकों की जो डिमेरिट्स हैं, वो सब मुद्दे में, इसीलिए ये यात्रा बहस करने के लिए की गई है। మీ లోపల అంత కోపం ఉందే, కోపం ఎందుకు? కాదమ్మా, ఇప్పుడు సమానంగా నువ్వు నేను అందరూ సమానంగా ఉండామంటే సంతోషపడతాము. లేదు నువ్వు తిరుగుతాండావని నువ్వు జోబీలు 2 నించుకొని పోయేది, మా ఎట్ల వల్ల నెట్టి సాకరీ చేపించుకునేది. ఇంకో కోపము రాక ఏమవుతుందమ్మయ్య? పొద్దుమునుకులు కష్టం చేసినాం. ఇప్పుడు పొద్దున ఆడ 2 చెప్పు కూర్చుంటున్నా, పరివెత్తి వత్తి ఆడ 2 కేజీలు పూలు, ఎర్ర పూలు, కనకాంబరాలు పీకితమే. ఇంకా ఆడ ఎర్ర మిరపకాయలు, ఈ మిరపకాయలు ఆడ బండి ఆడే ఉంది, బండి ఎద్దులు ఆడే ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చినది నేను. ఆడ మిరపకాయలు పీకే పంచేటి అయితే మళ్ళీ 2 నిలిచిపోతాయని మళ్ళీ పరివెత్తి ఇక్కడ వత్తి. అట్లా మేము కట్టం చేసేవాళ్ళము. మాకు కడుపు నిండా అన్నము లేకోకుండా కోపం రాక ఇంకేమవుతుంది అమ్మయ్య? నువ్వే చెప్పు.